Hello, how are you students? Welcome to my channel. Today in this video I will explain you from Ganit Prakash standard 7 fifth chapter, parallel and intersecting line. As you can see, it is a chapter of geometry, so we have to draw so many figures in this chapter, so get ready with your tools. Okay, in this chapter we will explore the relationship between lines on a plane surface. So now what is an plane? What is plane? So plane is a this is a paper. It is an example of plane. Plane means a flat surface that we can extend infinitely from all the side. This is a paper, our blackboard, surface of table, all are example of plane. Actually, before we start this chapter, we must clear our basic geometric figure. So 5-10 minutes first I will take a short recap of this. So what is plane, that I explain you. In a plane there are so many infinity numbers of points in it, like point A, B, C. Now what is point? So point determine a location. You can take example of tip of the pen, pencil, or in a location of our city in a map. जब हम इंडिया का मैप देखते हैं और उसमें हमारा सिटी देखते हैं तो उसका लोकेशन हमें सेम ऐसे ही पॉइंट से दिया जाता है. तो ये पॉइंट है जिसे हम एज ए डॉट रिप्रेजेंट कर सकते हैं. तो ऐसे इन्फिनिटी नंबर्स ऑफ पॉइंट इन अ प्लेन. ये सिर्फ एक प्लेन का सम पार्ट है, इसको हम एक्सटेंड कर सकते हैं. तो अभी हमें जो फिगर सीखनी है वो सारे प्लेन के अंदर ही होगी. तो जैसे हम पहले पॉइंट से चालू करते हैं, तो ऐसे बहुत सारे पॉइंट जो स्ट्रेट पाथ में हो, जैसे हम ए को ही एक्सटेंड कर देते हैं. ये पॉइंट, अगर यहाँ पे बहुत सारे पॉइंट है जो एक साथ कनेक्टेड है तो उसे हम कहेंगे लाइन. एंड वी कैन एक्सटेंड इट फ्रॉम बोथ द डायरेक्शन. सो दिस इज नोन एज लाइन ए बी. It is a point A and B, and line is a group of connected point comes in a straight path, and we can write as line AB. So this arrow shows that we can extend this line in both direction, and we can give it a different name also. If there is another 2 point P and F, so we can write line PF also. So AB and PF is the same line. So this is a line, and there are different types of line. Straight line, mainly two types of line, straight line and curved line. So straight line में एक तो पहली जो हमने ड्रॉ की है वो है horizontal line. फिर ये जो है vertical line, and third जो है oblique line, or you can say diagonals. हम जब स्क्वायर और पेंटागन वगैरह जब पॉलीगन ड्रॉ करते हैं तो उसकी डायगोनल मोस्टली हम ये लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं. तो इट इज़ नोन एज डायगोनल लाइंस. और जो स्ट्रेट नहीं है तो वो कर्व लाइन. तो कर्व लाइन में भी बहुत डिफरेंट टाइप्स की लाइन है, लेकिन हमें जो अभी करना है वो हॉरिजॉन्टल लाइन, वर्टिकल एंड डायगोनल लाइन. ओके, नाउ व्हाट इज लाइन, दैट इज क्लियर. नाउ पार्ट ऑफ अ लाइन, सपोज P. From P to one side it is we can extend infinitely. एक साइड से हम इसको कितना भी चाहे खींच सकते हैं. तो ये जो है वो रे PF है, रे PF. So ray is a part of line that has only one end point. In a line there is no end point, and in a ray there is a one end point where you can say starting point. So if P is the end point, so we can say that P is the starting point of ray PF or ray PB. We can write same ray PF or ray PB is the same because starting point is same. PF is also indicate this ray, and PF is also same. Now okay, line clear, ray clear. Now what is line segment? So line segment is a part of line that has two end points. Means this is the P. So we have to cut only this part. So only this part is known as line segment PF, and we can represent line segment as a bar.
with two endpoints. It has two endpoints. So AP, PF एंड PB तीनों जो है वो डिफरेंट लाइन सेगमेंट है. अभी हमने क्या PF और PB रे है तो सेम है, लेकिन अगर PF और PB लाइन सेगमेंट है तो वो दोनों सेम नहीं है. PF मीन्स सिर्फ इतना पार्ट और PB मीन्स इतना पार्ट. तो लाइन रे लाइन सेगमेंट ये तो क्लियर हो गया. Okay, now we have completed point, line, ray, line segment. Now come to the another important figure, geometric figure, angle. So when two rays, like it is ray PF and it is ray PQ, have same end point, or we can say two rays that share their starting point, that time an angle is formed or a corner is formed, that is known as angle. So it is known as angle. We can name it angle FPQ, or we can say it angle QPF, और we can say angle P. So ये एंगल है, और एंगल भी डिफरेंट टाइप्स के अकॉर्डिंग टू इट्स मेजरमेंट. तो कितने टाइप्स के, तो फर्स्ट जो है वो है एक्यूट एंगल. एक्यूट एंगल मीन्स इसका जो एंगल हम कैसे मेज़र कर सकते हैं, तो प्रोटेक्टर यूज़ करके हम एंगल मेज़र कर सकते हैं. तो एक्यूट एंगल जो है उसका है लेस देन 90 डिग्री, लेस देन 90 डिग्री मेज़र होता है, तो उसे हम कहते हैं एक्यूट एंगल. उसके बाद राइट एंगल. तो राइट एंगल यानी कि मैं यहाँ ड्रॉ भी करती जाती हूँ. एक्यूट एंगल कुछ इस तरीके का होगा. राइट एंगल यानी बीच में हम ऐसे स्क्वायर लगाएंगे और इसका मेज़र हो जाए एग्जैक्ट 90 डिग्री मेज़र. आफ्टर देन ऑब्ट्यूज एंगल. ऑब्ट्यूज एंगल ग्रेटर देन 90, सो इट लुक्स लाइक दिस. तो एक्यूट एंगल जो है वो मोर देन 90 एंड लेस देन 180. सो ये है हमारा ऑब्ट्यूज एंगल. आफ्टर देन स्ट्रेट एंगल. स्ट्रेट एंगल मीन्स a line, straight line. So it is known as straight angle and it is of exact 180 degree measure. अब 180 से बड़ा यानी कि रिफ्लेक्स एंगल, वो कुछ इस तरीके का दिखेगा. सो मोर देन 180 and less than 360, and last is complete angle. So complete angle is ये पूरा एंगल यहाँ से लेके अगर हम है तो यहाँ से लेके चालू करोगे तो ये पूरा एंगल हो गया 360. तो एग्जैक्ट 360 में से. सो ये थे हमारे एंगल्स, लाइंस के टाइप्स, व्हाट इज़ लाइन, व्हाट इज़ रे एंड व्हाट इज़ एंगल. ये सब हमने अच्छे से कर लिया है. आई थिंक ये बेसिक जो है वो पहले आना ही चाहिए, तो ही हम इस लेसन में आगे बढ़ सकते हैं. तो अब इस लेसन में आगे हमें लाइन, सिंगल लाइन नहीं, अगर हमारे पास एक से ज़्यादा लाइन है, पेयर ऑफ लाइन्स है, तो उसके बीच क्या रिलेशन है, अगर एंगल्स है तो उसके बीच क्या रिलेशन है, वो हमें इस लेसन में करना है. तो अब हम लेसन पे आ जाते हैं. यहाँ पर फर्स्ट टॉपिक है अक्रॉस द लाइन. यहाँ पे हमें एक स्क्वायर पेपर लेना है, उसको फोल्ड करना है अलग अलग तरीके से, और फोल्ड करने के बाद जो फोल्डिंग लाइन है वो हमें यहाँ जिगजैग से बताई गई है. और अब हमें ये लाइन को ऑब्जर्व करना है और देखना है कि इसमें कौन सी लाइन है जो एक दूसरे को मीट कर रही है, एक दूसरे को काट रही है, और कौन सी लाइन है जो नहीं काटे. मेन 2 टाइप्स की लाइन है. अगर हमारे पास 2 लाइन है तो या तो वो एक दूसरे को काटेगी या एक दूसरे को नहीं काटेगी. तो यहाँ पे हम जैसे देखते हैं तो ये लाइन है, ये सीधी तो नहीं है, लेकिन अगर हम इसको पेपर पे भले नहीं एक दूसरे को मीट कर रही है, लेकिन हम जैसे, क्योंकि ये लाइन है तो हम उसको एक्सटेंड कर सकते हैं. तो जैसे उसको एक्सटेंड करेंगे
पहले ये वाली लाइन देखते हैं। देखो अगर हम उसको एक्सटेंड करेंगे तो ये क्या हो जाएगी, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगी। ये देखो यहीं पे इंटरसेक्ट कर ली। वैसे ये लाइन भी है, पेपर पे तो ये लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर रही है, लेकिन अगर हम उसको एक्सटेंड करेंगे अरे नहीं मिला। ये देखो हम आ गए कन्याकुमारी से लेके कश्मीर तक, नहीं मिला। अभी हमें कश्मीर से भी आगे जाना पड़ेगा। ओके, लेकिन हो गया, इंटरसेक्ट हो गया। तो मतलब कुछ लाइन ऐसी होती है जो पहले हमें भले दिखे कि एक दूसरे को नहीं काटेगी, लेकिन जैसे उसको एक्सटेंड करते हैं तो वो लाइन एक दूसरे को कट कर लेती है। तो ऐसी जो लाइन है उसे कहते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन। और कुछ लाइन ऐसी है जैसे कि ये 2 लाइन है, इसको हम पूरा एक्सटेंड कर लेते हैं, दोनों साइड से एक्सटेंड करेंगे। इसको हम कितना भी खींच लें इंडिया से लेकर लंदन तक, लेकिन ये लाइन एक दूसरे को मीट नहीं करेगी, क्योंकि उसके बीच का जो डिस्टेंस है वो सेम ही रहेगा। अगर डिस्टेंस सेम ही रहेगा तो एक दूसरे को कैसे मीट करेगी। तो मेनली 2 टाइप्स की लाइन है। अगर हमारे पास पेयर है तो 2 लाइन के बीच 2 टाइप्स के रिलेशन हो सकते हैं। एक तो ये कि एक दूसरे को कभी इंटरसेक्ट नहीं करेगी, और दूसरा एक दूसरे को कहीं पर भी इंटरसेक्ट करेगी, और इंटरसेक्ट करेगी तो एक पॉइंट पे ही करेगी, बराबर। तो ये 2 टाइप्स की लाइन है। जो ये वाली लाइन है जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती उसे हम पैरेलल लाइन बोलेंगे, और जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगी उसे हम बोलेंगे इंटरसेक्टिंग लाइन। सो ये हो गया हमारा। अब हाउ मैनी एंगल्स डू दे फॉर्म। अगर 2 लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है, जैसे कि यहाँ हमने देखा, या फिर हम यहाँ देख लेते हैं। यहाँ ये 2 लाइन है दी हमें, लाइन एल है और लाइन एम है। वो एक दूसरे को क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है। और जब लाइन इंटरसेक्ट करती है तो क्या बनते हैं, 4 कॉर्नर बनते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, एंगल। तो यहाँ पे एंगल ABCD बन रहा है। तो कितने एंगल बन रहे हैं, हाउ मेनी एंगल्स डू दे फॉर्म। सो दे आर फॉर्मिंग 4 एंगल्स। सेकेंड, कैन 2 स्ट्रेट लाइन इंटरसेक्ट एट देन मोर देन 1 पॉइंट। नो, 2 स्ट्रेट लाइन इंटरसेक्ट कैन नॉट इंटरसेक्ट एट मोर देन 1 पॉइंट। एक दूसरे को एक ही पॉइंट पे काट सकती है, क्योंकि वो स्ट्रेट है। अभी दूसरे पॉइंट पे काटेगी तो वो स्ट्रेट कैसे रहेगी। सो नो, इट इज़ नॉट पॉसिबल। ओके, अब यहाँ हमें एक एक्टिविटी करनी है। ड्रॉ 2 लाइन्स ऑन अ प्लेन शीट ऑफ पेपर सो that they intersect. Measure the 4 angles formed with a protractor. Draw 4 such pairs of intersecting line and measure the angles formed at the point of intersect. तो इसमें से 1 टाइम मैं आपको करके बताती हूँ हमें क्या करना है। पहले एक प्लेन शीट ले लीजिए और इस पर हमें 2 लाइन लेनी है। 4 एंगल्स फॉर्म्ड विथ कोई भी 2 लाइन ले लेते हैं हम। चलो एक ये लाइन ले ली, ऐसी लाइन जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करे। अब ये लाइन है, इस तरह से कर लेना है और नाम लिखते हैं L और M। तो अब कितने एंगल बन रहे हैं यहाँ पे, ये है 1 2 3 और 4 एंगल बन रहे हैं। तो अभी हमें ये सारे एंगल्स को क्या करना है, मेज़र करना है। अब एंगल कैसे मेज़र करना है ये आपको आता है ना। अगर नहीं आता है तो अच्छे से देख लीजिए। ये प्रोटेक्टर में जो बीच में होता है वो यहाँ पे जो ये पॉइंट है वहाँ पे रखना है। और अगर यहाँ से 0 से स्टार्ट करते हैं तो ये वाला रीडिंग, और अगर 0 यहाँ से स्टार्ट करते हैं तो ऊपर वाला रीडिंग हमें देखना है। तो पहले हम ये जो रेज है, जो एंगल्स बना रहे हैं, उसके ऊपर इसको परफेक्ट लगाना है 0 पे। 1 साइड ये 0 पे हो गया। अब यहाँ पे 0 है तो हमें ये वाला काउंट करना है। तो अब ये आ रहा है, कितना एंगल आ रहा है यहाँ पे देखो, ये हो रहा है 130 140 और 140 के ऊपर हो रहा है। सो आई थिंक इट इज़ 142 डिग्री समथिंग है। चलो ऐसे ही हम ये दूसरा भी कर सकते हैं। इसमें हम यहाँ से कर लेते हैं। विदाउट मेज़र किया आप बता सकते हो ये कितना होगा। चलो यहाँ पे 0 है ये वाला, तो ये हो गया 10 20 30 और ये हो रहा है 38। देखो यहाँ पे ये 30 है, 40 के यहाँ पर आ रहा है। सो ये हो गया 38। चलो ऐसे ही यहाँ पर हम ये वाला मेज़र कर लेते हैं। ये 0 पे हमने यहाँ एडजस्ट किया है। अब ये वाला करते हैं तो अगेन आ रहा है यहाँ पे 140।
और 140 के थोड़ा सा आगे जा रहा है तो हम इसको लिख देते हैं 142 डिग्री। तो सेम ऐसे ही अभी हम यहाँ करेंगे। ये मैंने 0 पे एडजस्ट किया है। तो ये 40 के आजू बाजू आ रहा है यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे हमें एग्जैक्ट 40, ये थोड़ा लाइन की वजह से थोड़ा बहुत ये हो रहा है, तो हम इसको 38 ही होगा। ये थोड़ा मेज़रमेंट में इधर उधर हो रहा है, बाकी ये सेम है। तो इस टाइप के हमें 4 टाइम और अलग अलग टाइप, ये जैसे 40 तो हम थोड़े अलग एंगल पे लाइन इंटरसेक्ट करें, इस टाइप से अलग ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे इसमें 140 38 है तो इसमें थोड़ा और एंगल हो, या फिर सिंपल हम उसको एग्जैक्ट 90 डिग्री पे करेंगे तो ये तो एकदम सिंपल हो जाएगा। ये कितना एंगल है, ये देखो 90, यहाँ पर भी 90, और ऐसे करें तो ये भी 90 90, तो ये सारे हो गए 90 90 90 90। तो मतलब बीच में हो रहा है सर्कल, तो कंप्लीट एंगल तो हमारा कितने का होता है 360 का, तो वो तो इनको प्लस करने पे 360 तो आना ही चाहिए। प्लस अब यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर यहाँ हमें बताया है एक्टिविटी के बाद व्हाट पैटर्न डू यू ऑब्जर्व अमंग दिस एंगल, तो हमने ये जो एक्टिविटी की उसमें हमें क्या ऑब्जर्व करने को मिलेगा कि जो भी हम लाइन अलग अलग लाइन देके एंगल बनाते हैं तो उसमें जो एंगल्स बनते हैं तो वो 4 एंगल्स में 2 पेयर बनेगी ऑपोजिट एंगल की, तो वो पेयर जो है वो क्या होगी, इक्वल होगी। मीन्स इसका मेजरमेंट 142 है तो इसका भी 142, अगर ये 38 है तो ये भी 38। तो ये पैटर्न हमें यहाँ देखने को मिल रही है कि ऑपोजिट व्हेन 2 लाइन इंटरसेक्ट ईच अदर एंड 4 एंगल इज फॉर्म, देन 2 पेयर ऑफ ऑपोजिट एंगल इज इक्वल इन मेजर। ये पैटर्न हमें यहाँ देखने को मिल रही है। Now in next question in figure 5.2 here, if angle A is 120, okay, angle A is 120, can you figure out the measurement of B, C and D without drawing and measuring them? अब हमें विदाउट मेजर किए ये सब एंगल्स का मेजरमेंट बताना है। तो जैसे ही अभी हमने जो पैटर्न ऑब्जर्व की, ऑपोजिट जो पेयर है वो क्या होती है, सेम होती है। तो यहाँ A 120 है तो ऑफिशियली CB क्या होगा, 120 होगा। तो अब हम D और B भी फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे, तो टोटल कितना होना चाहिए, 360 होना चाहिए, और उसमें से 120 प्लस 120 240 गया, तो कितना बचेगा, 240 गया तो 120 बचा। और B और D भी क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अब दोनों का मेजरमेंट 120 हो रहा है तो उसको डिवाइड बाई 2 करो 60, तो ये हो गया 60 60। तो अगर हमें एक एंगल का मेजरमेंट पता है तो हम तीनों एंगल विदाउट मेजर किए उसका मेजरमेंट बता सकते हैं। ओके, नाउ it is the last question of this topic. Is this always true for any pair of intersecting line? अब ये जो हमने पैटर्न ऑब्जर्व की है कि ऑपोजिट पेयर ऑफ एंगल्स आर इक्वल, तो वो ट्रू फॉर एनी पेयर ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइन, कोई भी लाइन इंटरसेक्ट करे उसके लिए राइट है, तो वो हमें बताना है। चेक दिस फॉर डिफरेंट मेजर ऑफ ए यूजिंग दिस मेजरमेंट, कैन यू रीजन वेदर दिस प्रॉपर्टी होल्ड ट्रू फॉर एनी मेजर ऑफ ए। We can generalize our reasoning for figure 5.2 without assuming the value of A. तो विदाउट हमें डिफरेंट मेजरमेंट के लिए प्रूव करना है, तो हमें अभी हम A का कोई भी वैल्यू नहीं लेते हैं, सिंपल ABCD लेकर ही हमें ये प्रूव करते हैं कि ये जो पैटर्न हमने ऑब्जर्व की है दैट A इज इक्वल टू एंगल C और एंगल B इज इक्वल टू एंगल D, वो हमें प्रूव करना है। तो कैसे करेंगे, चलो ये ABCD है, ओके, तो ABCD। अब यहाँ पे ये A और B जो है वो क्या है, एक लाइन, बराबर, ये लाइन से है, तो ये क्या हुआ, इनका मेजरमेंट इक्वल क्या होगा, इनको हम प्लस करेंगे तो ये होना चाहिए 180। सो एंगल A प्लस B 180 होना चाहिए, क्योंकि ये मिलके एक लाइन बना रहे। तो वैसे ही सेम ये लाइन कौन सी है, L है, तो हम इसको M लेते हैं, तो M से ही ये दो एंगल भी बन रहे A और D, तो A और D, और ये दोनों क्या होना चाहिए, 180 होना चाहिए। तो A और ये तो यहाँ पर है, तो इसका मतलब क्या हुआ, B और D सेम है।
तो बी और एंगल डी सेम प्रूव हो गया। तो वैसे ही हम ये वाली लाइन भी ले सकते हैं। अब लाइन एल बना रहे हैं, ए बी, एंगल बी प्लस एंगल ए, और ऐसे ही ये वाली एम लाइन बना रही है बी प्लस सी, तो बी प्लस सी, और ये दोनों होना चाहिए 180 क्योंकि ये स्ट्रेट एंगल है। तो बी बी सेम है, तो अब ए और सी भी क्या हो गए, सेम। तो अब यहाँ हमने वो प्रूव कर लिया, विदाउट एज्यूमिंग एनी मेजरमेंट वी कैन प्रूव डेट ए इज इक्वल टू सी हियर एंड बी इज इक्वल टू डी, बी और डी। तो ये हम ऐसे प्रूव कर सकते हैं। और ऐसे एंगल जो लाइन बनाते हैं, मतलब कि स्ट्रेट एंगल है, एक तो एडजेस एंगल भी है और स्ट्रेट एंगल भी है, जैसे कि ए और बी, ए और डी, और बी और सी, और डी और सी, तो उसे हम लीनियर पेयर कहेंगे। लीनियर पेयर मीन्स जो एक स्ट्रेट लाइन बनाते हैं प्लस उन दोनों को ऐड करने पे है जो मेजर आ रहा है वो क्या है, 180 है। वो मैंने जब एंगल बताया तो जो पेयर्स होती है उसमें एक टॉपिक मैं भूल गई हूँ, वो मैं अभी एक्सप्लेन कर देती हूँ तो आपको ये अच्छे से समझ में आ जाएगा। अगर हमारे पास दो एंगल है और वो दो एंगल का मेजरमेंट है, चलो एक एंगल है ये, इसको हम 70 लेते हैं, और एक एंगल है ये 20, ऐसे दो एंगल का पेयर है, तो इसको ऐड करने पे क्या हो रहा है, 70 + 20 90 डिग्री। तो इसे हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहेंगे। कौन से एंगल, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ये दोनों एंगल एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट है। वैसे ही अगर कोई दो एंगल ऐसे है, जैसे कि ये समझ लेते हैं 110 है और एक एंगल है ये है 70, तो ये मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा, 110 + 70 इज इक्वल टू 180। तो इसे हम कहेंगे सप्लीमेंट्री एंगल, ट्रायंगल, और ये एक दूसरे के सप्लीमेंट्री भी है। और अगर ऐसे दो एंगल जिसका मेजरमेंट 180 है और ये दोनों एडजेस एंगल भी है। अब एडजेस एंगल क्या है, तो एडजेस एंगल होते हैं जिसका वर्टेक्स सेम होता है, जैसे कि एक एंगल है पी क्यू और ये एक एंगल है एस, बराबर, और यहीं से दूसरा एंगल है ये है आर। तो अब हमारे पास दो एंगल है, एक एंगल ये है और ये है, दोनों का वर्टेक्स कॉमन है पी, और एक आर्म जो है वो कॉमन है पी एस, और बाकी के आर्म अलग है। तो इस टाइप की जो पेयर होती है उसे हम एडजेस एंगल कहते हैं। जैसे कि अभी हमने इसमें देखा तो ए और बी क्या बना रहे, एडजेस एंगल है, और ए और सी क्या है, ओपोजिट एंगल, तो ये है एडजेस एंगल। अब अगर ये दोनों एडजेस एंगल का टोटल मेजरमेंट ये मान लो कि 180 होता है, ये पेयर मैंने अलग बना दी है, अगर हम इसको पूरा, मैं फिर से एक बार ड्रॉ कर लेती हूँ। अगर ये एडजेस एंगल है, ये पी क्यू, यहाँ पे आर है और ये एस है, तो अब ये मानो कि 110 है और ये 70 है, तो एक तो ये एक दूसरे के सप्लीमेंट्री एंगल भी है, प्लस ये स्ट्रेट एंगल बना रहे हैं और एडजस्ट है, तो इसे हम लीनियर पेयर भी कहेंगे। तो जो लीनियर पेयर होती है उसका टोटल मेजरमेंट कितना होगा, 180 प्लस दे फॉर्म स्ट्रेट लाइन, तो एक ये लीनियर पेयर भी हो जाएगी। तो आपको लीनियर पेयर समझ में आ गया होगा। और जैसे हमने यहाँ पे दो लाइन इंटरसेक्ट कर रही है और जो चार एंगल बन रहे हैं, तो उसे हम कहेंगे वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। यहाँ पे लाइन ए और सी, एंगल ए और सी और बी और डी, ऐसे टू पेयर्स बनेगी वर्टिकली ऑपोजिट एंगल की। तो ये हमें यहाँ करना है। So opposite angles like B and D formed by two lines intersecting each other are called vertically opposite angles. So vertically opposite angles are always equal to each other. From the above reasoning, we conclude that whenever two lines intersect, vertically opposite angles are equal. Such a justification is called a proof in mathematics. तो यहाँ तक हमारा पूरा कंप्लीट हो गया है, और यहाँ तक जो भी थियरी हमने की है वो मैंने पूरी यहाँ पे लिखी है। इफ़ यू वांट टू नोट डाउन, सारे पॉइंट मैंने अच्छे से कवर किए हैं। इफ़ योर बेसिक इज़ नॉट क्लियर, प्लीज़ रीड दिस 2-3 टाइम सो यू कैन बेटर अंडरस्टैंड द टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। यहाँ मैंने एग्जाम्पल भी सारे में ड्रॉ किए हैं, तो आप अच्छे से समझ सकते हो।
अब जो फिगर इट आउट है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय।